All right. So, sternocleidomastoid muscle. Short note, but it is important to understand anterior triangle and posterior triangle. Once you understand the sternocleidomastoid, then it will be easy to understand the triangles. And triangles are 3 plus category question. They will ask anterior triangle or posterior triangle every alternate year. They will ask it in head neck section. So, sternocleidomastoid is a large superficial muscle of the neck. The first subheading is definition. Second is importance. It divides lateral aspect of neck into two triangles, anterior triangle and posterior triangle. So you have to write down the first subheading, and that is definition. Because in anatomy, the marks are given according to the subheadings. And second is the importance. Third is origin. Fourth is insertion and action. And then apply. So if you understand this definition part, then do the right mark and importance, and then origin and insertion. This is the diagram. Important diagram है नेक रीजन के लिए. आज के लेक्चर के बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसके लिए आप. Origin, sternal head arises from the superolateral part of the front of the manubrium sterni. And clavicular head arises from the medial 1/3 of superior surface of clavicle. तो मैंने ऐसे याद रखा sterno, so from sternum, and cludo is from clavicle. एक origin sternum से और एक clavicle से. Then insertion lateral surface of mastoid. So sternocleido और mastoid, आगे लिखा था mastoid. So insertion is on the mastoid. तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर ही वो याद हो जाते हैं अपने को. तो ऐसे क्वेश्चन को तो तुरंत स्टार मार्क करके रखने का, ताकि स्टडी करने का लोड कम हो जाता है. Lateral surface of mastoid process, lateral 1/2 of superior knuckle line on the skull. Nerve supply, spinal accessory and second cervical nerve. An action, when one muscle contracts, it turns face to the opposite side. अपने फेस को अपोजिट साइड टर्न करके देखो. तो आप अगर लेफ्ट साइड को टर्न कर रहे हो, समझ लेना इधर राइट साइड की मसल को पकड़ के देखो, उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. और आप अगर इधर से जोर से प्रेस करके ऐसे कर रहे हो, 2-3 बार ऐसे झटका दो थोड़ा सा नेक को, थोड़ा झटके से करो. इधर राइट साइड में झटके से करो ऐसे, तो देखना कैसे कॉन्ट्रॅक्ट हो रही है. आणि त्याला मसलला हातामध्ये पकडा, वैष्णवी मैडम, ऐसे ऐसे पकड़ो उसको और ऐसे इधर झटका दो, ऐसा देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. तो ये कुछ सुंदर चीजें होती है कि यार ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऐसा, तो बहुत लोड कम हो जाता है पेपर में. एक्शन हाँ मला माहिती है, ऐसा कुछ होना चाहिए. And when both muscle contracts together, they draws the head forward, lifting the head from the pillow. दोनों मसल के ऊपर अगर मैं ऐसे हाथ रखता हूँ, वैष्णव मैडम आप जरा इधर देखते जाओ ना, आप ऐसे क्यों करते हो जैसे आपकी मेरी कट्टी है. एक बार उधर स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, मेरा लेक्चर करने के लिए यहाँ पे आई हो आप और आप स्क्रीन को देख रहे हो. तो ये जो होता है इसको मैंने पकड़ा और फिर झटके से मैंने ऐसा ऐसा किया आगे, फिर इसको आगे लेके जाओ, ऐसा करो, झटके से आगे लेकर 2-3 बार देखो. तो ये सुंदरता है. एनाटॉमी है ना, पूरा फील करने का सब्जेक्ट है. मैं बार बार स्टूडेंट को यही बोलते रहता हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट अलग है, ये अलग है,
ये वर्ड्स में सेंटेंसेस में पढ़ा नहीं जाता है सब्जेक्ट, ये पूरा फील करने का है, अपनी बॉडी का है, अपने एक्शन है, अपने पार्ट्स है। मैंडिबल को आप ले रहे हो तो अपना मैंडिबल है, उसका डिप्रेशन है, इलेवेशन है, साइड टू साइड मूवमेंट है, मसल एवरीथिंग सब अपने अंदर है उसका। तो ये हो गया एक्शन। तो एक्शन तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अब फिर से एक बार ओरिजिन इंसर्शन को ही देख लेते हैं। Sternal head arises from superolateral part of the front of the manubrium sternum, and clavicular head from the medial one third of the superior surface of clavicle. Then insertion lateral surface of mastoid bone, mastoid process, and lateral one half of superior knuckle line. तो यहाँ पे आपका एक स्टर्नल हेड आ रहा है और एक क्लेविकुलर हेड है, मान लेते हैं ये क्लेविकल है, यहाँ पे दो हेड दिख रहे हैं उसके, और फिर ये फ्यूजन होके ऊपर जाता है, दैट गोज टू द mastoid process. सिंपल। देख लो डायग्राम को अच्छी तरह से एक बार, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहाइड है, ये इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहाइड है, तो वो ट्रायंगल के लिए काम में आएगा। बट अभी तो आपको सिर्फ एक मसल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो वो एक साइड दिखा रहा है आपको डायग्राम का, वो जो भी पर्सन है उसका एक साइड दिख रहा है, मतलब आप उसका लेफ्ट साइड देख रहे हैं एक हिसाब से, ऐसा खड़ा है वो। तो उसी को कंसिडर करके अगले टॉपिक्स उसमें आने वाले हैं। दो हेड्स का ओरिजिन दिख रहा है मुझे, और इंसर्शन जाते समय मेस्टोड प्रोसेस ऑफ सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये स्कल के ऊपर है, मेस्टोड प्रोसेस भी स्कल के ऊपर है। तो ये मसल ऐसा मसल अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये मेस्टोड प्रोसेस इसका लैटरल सरफेस, कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा, कुछ पार्ट ऊपर तक चलेगा ऐसा। तो फिर ऊपर क्या नाम देना चाहिए, तो उसने वो सुपीरियर नकल लाइन ऐसा नाम दिया है, सुपीरियर नकल लाइन यहाँ पे आती है ऐसे, इमेजिनरी लाइन है जो कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से लैटरली जाती है। तो पीछे जब हाथ लगाता हूँ, तो मेरा जब सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस है, वहां से अगर मैं इमेजिनरी लाइन ऐसे खींचता हूँ, दैट इज सुपीरियर नकल लाइन, और उससे नीचे जाता हूँ स्कल में यहाँ पे कहीं, तो इंफीरियर नकल लाइन यहाँ पे आती है। कभी आपके मन में आया कि सर कैसे सुपीरियर इंफीरियर, तो वो ऐसा एनाटॉमिकल पोजीशन में, दिस इज सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन एंड दिस इज इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन। तो वो क्या बोलते हैं कि मेस्टोड प्रोसेस के साथ साथ थोड़ा पार्ट ऊपर चले गए, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो ऊपर मतलब फिर स्कल के ऊपर, स्कल के ऊपर कहाँ, तो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। तो समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो फिर थोड़ा सा बार बार उसको रिवाइज करो, और आज के आज उसको पक्का कर दो। मेस्टोड प्रोसेस आंखें बंद करके, और फिर उसके ऊपर क्या बोला था सर ने, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, ऐसा है। मतलब आई थिंक स्टडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए और मेमोराइजेशन पण जे पाठांतर ज्याला आपण म्हणतो वो भी लगता है उसमें, ऐसा है। और दोनों तरफ उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप दोनों के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, जो रिपीटर होता है, तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मैं पढ़ती तो हूँ सर, लेकिन एग्जाम के टाइम में भूल जाती हूँ, तो ये दो ही स्टेप में ढूंढो कि गड़बड़ कहाँ है। या तो इसके पहले जो पढ़ा था उसमें अंडरस्टैंडिंग हुआ था क्या, नंबर वन, एकदम फुल प्रूफ अंडरस्टैंडिंग, और नंबर टू उसके मेमोराइजेशन के लिए मैंने कितना टाइम दिया था, या फिर मैं सिर्फ एक बार पढ़ के आगे चले जाती थी। मेमोराइजेशन को बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है, बहुत रिविजन करने पड़ते हैं, 10-10 बार एक एक क्वेश्चन लिख के देखना पड़ता है बगैर देखे, तब जाके वो मेमोरी में बैठता है। और उसमें भी 3+ क्वेश्चन पहले करने पड़ते हैं, जो लास्ट 7-8 साल में बार बार पूछे गए हैं, एटलीस्ट उनको हम टारगेट करते हैं। फिर हम ये नहीं बोलते कि तुम तीनों के तीनों बुक उसकी बीडी चौरसिया का फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम करो, उतना तो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो 7-8 साल में जो कॉमन कॉमन पूछा गया है, अगर उसको भी हम उठा लेते हैं, उसको बाय हार्ट करना है, ये एक प्रिंसिपल याद रखो। तो ये यहाँ पे हुआ। अभी अभी ये अंडरस्टैंडिंग फेज चल रहा है, देखो अभी सर ने एक बार यहाँ बताया, फिर हेडिंग में बताया, फिर स्कल के ऊपर बताया, डायग्राम में बताया। तो अंडरस्टैंडिंग स्टेप के ऊपर सर कितना मेहनत लेते हैं,
और फिर एक स्टेप मेरा डायरेक्ट लाइव प्रेजेंटेशन रहता है। आइए मैडम। क्योंकि मेरे को पता है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग, देखो इधर आओ बस। तो ये वो डायग्राम में ऐसे ही खड़ा था वो, है ना, ऐसे ही खड़ा था। तो इसका स्टर्नोक्लेड मेथड देखने के लिए ना, इसका फेस उधर टर्न करना पड़ेगा मुझे, और थोड़ा सा नीचे 1-2 सेंटीमीटर थोड़ा नीचे बेंड किया, और फिर इसको मैंने ऐसा कर दिया। देखो इससे ऐसा करते हैं तो ये टेंडन यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाता है। दिख रहा है टेंडन, ये नीचे का हेड यहाँ पे देखो, स्टर्नल हेड दिख रहा है। यहाँ पे मैन्युब्रियम स्टर्नम है, और यहाँ पे क्लेविकल है। अब इसको और ऐसा करके, हाँ, ये जो मसल है इसको मैं ऐसे लेके जाता हूँ। ये दिख रहा है आपको इधर से? थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, कैमरा इधर। हाँ, ये देखो ब्यूटीफुल। अब क्या होता है कि ये पीछे वाला जो मसल है, यहाँ पे अगर मैं प्रेस करूँ, यहाँ पे देखो प्रेस किया, खड्डा दिख रहा है आपको, दैट इज अ पोस्टीरियर ट्रायंगल। और फिर ये मसल का एंटीरियर बॉर्डर को मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज द ट्रेपेजियस। ये देखो, ये पीछे आपको ट्रेपेजियस दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा आगे करके ऊपर ऊपर की तरफ करेंगे आप। हाँ, और यहाँ पे मिड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो। तो क्या हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया, दिस इज एंटीरियर ट्रायंगल। अगर हम एक साइड, आप सिर्फ एक साइड देखें, इसके लेफ्ट साइड, और इसका जो बाउंड्री है ये आपको ऐसे भी मिल रहा है इधर, ये देखो। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर ट्रायंगल। ये नीचे यहाँ पे मैं क्लाविकल करूंगा एक, तो आपको ट्रायंगल की नीचे की बाउंड्री भी समझ में आएगी। हाँ, तो अब आपको लगेगा वो ट्रायंगल कैसे हो गया। और यहाँ पे पीछे ऊपर जोड़ दिया, तो देखो ये ट्रायंगल बन गया पोस्टीरियर ट्रायंगल, और ये हो गया एंटीरियर ट्रायंगल। 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, उसका जो हेड है क्लाविकुलर हेड, हाँ, तो ये क्लियरली ट्रायंगल आपको अभी पोस्टीरियर ट्रायंगल दिख रहा है, एक एंटीरियर ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो। दिस इज एंटीरियर ट्रायंगल, दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल। आई होप सबको क्लियर होगा। प्रेरणा, इजी पार्ट। यस, इस लाइन को वो क्या करते हैं, इधर जोड़ देते हैं, लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड सर्कमस्टर। तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब वो दिख रहा है आपको, आप एक सब ट्रायंगल, वैष्णवी खड़ा लगा, 2 ट्रायंगल खड़ा ले, ये देखो। अब आप जब फ्रंट से देखते हो, तो एक साइड उसकी जो ये राइट साइड है ये पूरी खुली है अभी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, लैटरल साइड मीन्स जैसे जैसे लेफ्ट साइड में हो रहा है वैसे राइट साइड में हो रहा है। चलो थैंक्स। हाँ प्रेरणा मैडम, वाह, थैंक यू थैंक यू। उससे लाइवलीनेस लगता है कि आपको समझ में आया। अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वाव मीन्स दैट हैप्पीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गुड। जितना भी देर हम पढ़े ना, उतना देर हमको खुशी होनी चाहिए। कभी भी पढ़ना ऐसा बोर्डम नहीं होना चाहिए, यार अभी लेक्चर है, अभी बोर हो जाएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो हमारे दिन का ना सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए, सबसे एंजॉयबल टाइम होना चाहिए कि वाह यार हमने इतना अच्छा सीखा। आज कोशिश कर रहा हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग आपको दे दूँ तुरंत, ताकि जिसको रिवीजन करने का है, फिर वो रिवीजन, इसके लिए मैंने अच्छा यहाँ पे वो प्रैक्टिकल भी दिखाया।
देखो अभी क्या होगा ना, वो डायग्राम और ज्यादा पहचान की और ज्यादा इजी लगेगी आपको, दैट विल बी द बेनिफिट। बार बार उसको सर यहाँ पे करके लेते हैं। वो मेन लेक्चर का रोल और उसका जो फंक्शन होता है, ड्यूटी होती है लेक्चर की, वो यही होती है कि वो टॉपिक क्लास में अच्छे से करा के ले। एक्सटर्नल हेड, क्लेविकुलर हेड, दो ओरिजिन है उसके, दो इंसर्शन थे। सप्लाई एक्शन देखा हमने, इंपॉर्टेंस बिटवीन द टू हेड्स ऑफ ओरिजिन, स्मॉल ट्रायंगुलर depression is called as lesser supraclavicular fossa, which overlies the internal jugular vein. अप्लाइड नहीं लिखा इसका, अप्लाइड लिखना पड़ेगा। किसी भी मसल के लिए अप्लाइड होता है उसका पैरालिसिस, सिंपल। इफ देयर इज एनी इंजुरी टू द नर्व, then that person fails to contract the muscle, and the neck bends on one side। नेक उसके ऐसे एक साइड में बेंड रहेगी, ऐसे नीचे की तरफ, इधर की तरफ, इधर या इधर, जो भी एक मसल उसके अगर चले गई, फिर वो, मतलब मेरा राइट साइड का मसल का अगर कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, तो वो लेफ्ट साइड में ऐसे ड्रॉप है, उठा नहीं सकता। इतना भी लिख दोगे तो उसका 1 मार्क आपको मिल जाता है। अब दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज अ स्पेस ऑन द साइड ऑफ द नेक situated behind the sternocleidomastoid muscle। देखो इसलिए सर है ना ऐसे सीक्वेंस में टॉपिक लेते हैं, क्योंकि वो पता रहता है लास्ट एक्सपीरियंस से कि अभी ये टॉपिक कैसे आने वाले हैं क्लियरली। अगर वो समझा तो इसकी डेफिनेशन समझ में आती है। और इसके लिए इसके नेक के ऊपर अभी करके देखा हमने कि कैसे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पीछे पोस्टीरियर ट्रायंगल है, उसके आगे एंटीरियर ट्रायंगल है, वो हमने दिखाया। तो इंटरमिंगल एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, अब सेम डायग्राम काम में आता है, ये एक सुंदरता है एनाटॉमी की। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्या सर कितने डायग्राम है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक ग्रुप ऑफ डायग्राम हम अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो जो भी सेक्शन है वो पूरा हाथ में आ जाता है। अब हेड नेक फेस हो, एब्डोमेन हो, अब नेक्स्ट सेक्शन में ये डायग्राम कॉमन है। और स्टर्नोमैस्टोइड के लिए सपोज मैंने प्रैक्टिस कर ली, तो ट्रायंगल के लिए फ्री में मिल जाता है, फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ऐसे। अभी हम लोग यहाँ पे है, पीछे यहाँ पे ट्रायंगल में है, क्वेश्चन ये चल रहा है। और यहाँ पे फिर इस लाइन को आप आपने देखना चाहिए, वो ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री है। और इस लाइन को, तो ये पोस्टीरियर बाउंड्री है, और यहाँ पे क्लेविकल इंफीरियर बाउंड्री है, ठीक है। और जो ऊपर का पार्ट है वो एपेक्स। अब आप बोल ही रहे हो ट्रायंगल, तो जब ट्रायंगल बोलोगे तो ट्रायंगल का एक एपेक्स आएगा और एक बेस आएगा। बेस इज अ वाइड पार्ट, एपेक्स इज अ नैरो, दैट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू बाउंड्रीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री। तो एपेक्स इज अपवर्ड्स एंड बेस इज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे सुंदरता ये हो जाती है ना, जो जिन लोगों को एनाट इजी लगता है वो इसलिए लगता है बिकॉज वो डायग्राम को देख के एक्सप्लेन कर डालते हैं कि सर यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लेविकल है ना, तो बेस इज फॉर्म बाय क्लेविकल, और सर एंटीरियरली स्टर्नोमैस्टोइड है ना, तो एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द स्टर्नोमैस्टोइड। और पोस्टीरियरली ट्रेपेजियस है सर, पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द ट्रेपेजियस, सिंपल। ये भी एक लॉजिक है। अब थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा कि एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमैस्टोइड, ऐसा। तो वर्ड के ऊपर ध्यान दो, जब ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूं तो वो उसकी बाउंड्री है। कोई भी ट्रायंगल आप जब ड्रॉ कर रहे हो, तो अब ऐसा ये ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ हो रहा है, तो उसके लिए वो एक बाउंड्री है, एंटीरियर बाउंड्री एंड पोस्टीरियर बाउंड्री एंड बेस एंड अपेक्स।
लेकिन जिस मसल ने वो फॉर्म किया उस मसल की वो बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, तो यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं लिखने में, इसके लिए मार्क्स कट जाते हैं कि भाई स्टर्नोमेस्टोइड मुझे दिख रही है, वो इतनी ब्रॉड है, उसकी एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, एक रिबिन की जैसी है, वो एक रिबिन इमेजिन करो आप। तो एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड एंड पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल। ऐसे अब एक बार ये मैंने समझा एज ए स्टूडेंट और फिर उसको रिवाइज किया और फिर उसको टेस्ट में लिखा, ऐसे 3 स्टेप में जाना पड़ेगा आपको। And inferiorly there is a base which is formed by the clavicle, and superiorly apex which is meeting point of sternomastoid and trapezius at the skull. मतलब क्या है ना कि एनेट में काफी सारी स्टोरी तो आपको ऐसी बनानी चाहिए कि जो कि आपने डायग्राम से बनाई है। समझ रहे हो ना, उसको सीख लो आप कि मैं कितना स्टोरी डायग्राम से बना सकती हूँ ऐसा। और फिर वो बेडी चौरसिया का पैराग्राफ हम रीड करते तो हमको वो डिफिकल्ट नहीं लगता। तो उन्होंने क्या लिखा है, एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड and posteriorly anterior border of trapezius, inferior or base middle 1/3 of clavicle, and apex present superiorly on superior nuchal line where the sternomastoid and trapezius meets together. तो यहाँ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा। जैसे मैंने बोला ना कि इजी क्वेश्चन हो तो पूरे क्वेश्चन की रीडिंग को आप स्टार मार्क कर देते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो उसमें जो हेडिंग्स इजी है उसको आप टिक कर सकते हो। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल, number 1 heading is definition, number 2 boundaries। अब बाउंड्री में एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इंफीरियरली और बेस एंड एपेक्स। तो रिवीजन करते समय आपने आपको ऐसे हेडिंग ही मैं डाल लेता हूँ कि भाई ऐसा हो गया, ठीक है ना, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक मेथड है हमारे, और वो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और फिर उसके बाद बाउंड्रीज में ही आता है रूफ एंड फ्लोर। ये मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो इसके लिए कुछ अलग आप हेडिंग बना सकते हो, कुछ यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, या फिर कुछ भी अलग आप प्लस हेडिंग कर सकते हो, कुछ भी करो। तो बाउंड्रीज में उसके ये हेडिंग। अब स्टेप 2 में 5 मिनट में हमको ये कन्वर्ट करना है सर के साथ, ये भी इजी है। तो फर्स्ट आता है रूफ। रूफ के लिए सर क्या बोलते हैं कि अब स्टर्नोमेस्टोइड जो है उसके पीछे ट्रेपेजियस तक है ना, आप स्कैल्पेल लेते हो और वो स्कैल्पेल से फिर आप क्या करते हो, वो उतना पार्ट वहां से आप कट करते हो। ये स्टर्नोमेस्टोइड का लाइन है, ठीक है, और ये पीछे ट्रेपेजियस का लाइन है सपोज। ऐसे स्कैल्पेल से कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, तो बीच में स्किन का टुकड़ा आएगा ना, बस वही रूफ है। रूफ मतलब जो जहां से आप अंदर जा रहे हो, रूफ इज अ सुपरफिशियल पार्ट। तो आपने क्या किया, उतना ट्रायंगुलर टुकड़ा आपने कट किया, तो मतलब रूफ में सबसे पहले आपको स्किन मिला। अब जैसे स्किन होता है ना, तो स्किन के साथ में सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया होता है, सिंपल। अब ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, ये तो आंखें बंद करके हम लिख सकते हैं, सिंपल। तो जितना सॉफ्टली उस टॉपिक तक पहुंच सके पहुंचने का, फिर डिफिकल्टी छोटी 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 करते जाने।
अब सुपरफिशियल फेशिया में कुछ सुपरफिशियल वहां पे हमेशा सबक्यूटेनियस आर्टरीज वेन्स नर्व्स रहती है, तो सम सुपरफिशियल वेसल्स एंड नर्व्स आर देयर और लिम्फेटिक्स एंड देन डीप डीप सर्वाइकल फेशिया, उतना ही आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो रूप इज फॉर्म्ड बाय स्किन सुपरफिशियल फेशिया और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ये नंबर 1 स्किन, नंबर 2 सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग, और यहां आना चाहिए नंबर 3। तीन अलग अलग हेडिंग्स है। अब यहाँ पे एक कॉमन लॉजिक सर ने बताया कि सुपरफिशियल फेशिया है स्किन के नीचे, तो मुझे हमेशा पता होता है कि वहां पे दिखता भी है हाथ के ऊपर सुपरफिशियल वेन वगैरह, ये सब दिखती भी है हमेशा, तो कॉमन सेंस यूज करने का कि देर आर सम सुपरफिशियल वेन, सम सुपरफिशियल आर्टरीज, सम सुपरफिशियल नर्व्स एंड सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ऐसे। क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि तुमको उसके नाम याद नहीं है ऐसा, इसके लिए मैं बीच बीच में आपको इजी स्टेप डाल देते रहता हूँ कि उससे भी आपका पासिंग हो जाए। नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग सम सुपरफिशियल वेन, मतलब ये सुपरफिशियल वेन आ गई यहाँ पे, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और सम सुपरफिशियल आर्टरीज, ये ऑक्सीपिटल ट्रांसफर सर्वाइकल सुप्रास्कैपुलर, ऐसा है, और नर्व्स सम सुपरफिशियल नर्व्स। फिर सेकंड स्टेप पे जब पढ़ने के लिए आप बैठते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो जो लोकल लोकेशन है वो लोकेशन के हिसाब से नाम है। क्लाविकल के ऊपर है, इसके लिए सुप्रा क्लाविकुलर। ऊपर जाते हो तो ऊपर ऊपर ईयर है आपका, तो ग्रेटर ऑरिकुलर। और थोड़ा ऊपर जाते हो आप, इसको टक 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 बजा के देखो, तो वो ऑक्सीपिटल पार्ट है, तो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ऐसा। तो नर्व्स को पकड़ने के लिए मैंने एक बार नीचे हाथ लगाया, फिर एक बार यहाँ पे हाथ लगाया, फिर एक बार ऊपर हाथ लगाया, उनका सुपरफिशियल। तो थोड़ा रुक के सोचने का कि इनका क्या हो सकता है नाम एनाटॉमिकल। तो नीचे हाथ लगाया तो सुप्रा क्लाविकुलर, कान के पास हाथ लगाया तो ग्रेटर ऑरिकुलर, और ऑक्सीपिट के पास हाथ लगाया तो ऑक्सीपिट। आर्टरीज के लिए भी वैसे ही है, ऊपर सेम वैसा ऑक्सीपिटल 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 आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज। एक्सटर्नल जुगुलर वेन तो सबसे बड़ी वेन है, वहां पे प्लेटिज्मा मसल फेमस है। मतलब याद क्या करना है मुझे कि सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स याद करना है, बाकी डीप फेशिया में उन्होंने कुछ नहीं दिया है। डीप फेशिया वैसा ही है वहां। तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया, जैसे उसको खोलोगे आप, तो खोलने के बाद में ट्रायंगल ओपन हो जाएगा, ऐसा है। पेज रफ पेज देना मुझे, ज्यादा से ज्यादा देर वहां पे चांस मिले, मैं सब ब्लैंक छोड़ रहा हूं। इसके लिए मैं जानबूझ के वहां पे रुक के डिस्कस करते रहता हूँ।
तो ऐसा पीस कट होगा आपका स्किन का ऊपर से, अपेक्स ऊपर है, बेस नीचे है, आप ऐसा वहां पे रख रहे हो, ऐसे कुछ एक एग्जांपल है ना, ऐसा पीस निकलेगा आपका। और ये रूफ है सपोज, और जैसे रूफ को आपने निकाल लिया, तो रूफ में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया सब आ गया। अंदर आपको कंटेंट्स मिलेंगे, ये ऐसा रेड कलर में, येलो कलर में मैं जो दिखा रहा हूँ, ये कंटेंट्स मिलेंगे आपको अंदर। रूफ निकालने के बाद ही उसके नीचे ये छुपे होंगे, दे आर कॉल्ड एज कंटेंट्स। रूफ अलग होता है, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, रूफ तो अलग होता है। ये ऊपर से रूफ दिख रहा है और अंदर कंटेंट्स, और उसके सबसे डीप, मतलब यहाँ पे डिसेक्शन करते करते आप डीपेस्ट पार्ट में चले गए, आप एकदम वर्टिकल कॉलम के पास चले गए उसके लैटरली, तब आपको उसका फ्लोर मिलेगा। ये देखो ब्यूटीफुल, सर ने एक तरफ रूफ दिखाया, एक तरफ फ्लोर दिखाया, आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि एक रूफ है ऊपर, एक डीप जो है वो फ्लोर है, लेकिन अंदर कुछ है, वो उसके कंटेंट्स हैं। देयर शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन कि यार ये कंटेंट्स कैसे है और ये रूफ में कैसे दिखाया था आर्टिस्ट, ये सुपरफिशियल आर्टिस्ट वगैरह, ये इनको तो दे आर जस्ट पासिंग थ्रू द रूफ। मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, देयर आर सम नर्व्स लाइक दिस एंड सम आर्टरीज लाइक दिस, सम वेन्स लाइक दिस। ये तो इसके थ्रू ही पास हो रहा है, ये तो रूफ में ही प्रेजेंट है। जैसे आपने रूफ हटा दिया, वो हट गए, लेकिन उसके बाद जो मेन आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स लगेंगे उसके कंटेंट्स हैं, ये सब आपके ऊपर है। ये रूफ, ये देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये रूफ ऊपर दिखाया सर ने, और उसमें उसके कंटेंट दिख रहे हैं, फिर रूफ को हटा देते हैं सर, तो पहले कंटेंट दिखते हैं, कुछ आर्टरी, नर्व, वेन दिख रहा है, उसके डीप फ्लोर दिख रहा है। फ्लोर, फ्लोर जिससे अभी मैं खड़ा हूँ, तो मेरे पैर के नीचे की जमीन फ्लोर है, तो वो बिल्कुल डीप है, सबसे नीचे है, और जो ऊपर है वो रूफ है। ऐसा, ये देखो फिर, जैसे अभी रूफ के पेज के ऊपर मैंने कुछ लाइन खींची थी ना, वैसे वो दिखा रहा है वहां पे कि ये रूफ में से जाने वाला जो, अगर ब्लू कलर है तो फिर वो वेन होती है, और अगर येलो कलर है तो वो नर होती है। तो मेनली एक्सटर्नल जुगुलर वेन वहां पर आप एक ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे ये आपने बोला था लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, सुप्राक्लैविकुलर नर्व, वगैरह वगैरह, तो उधर आपको नाम भी पता रहता है, और जब डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तब भी आपका लॉजिक चलता है कि हाँ यहाँ पे यही नाम मुझे देने, दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रोपोर्शनेट है, रेसिप्रोकल है। डायग्राम के थ्रू अंडरस्टँडिंग होता है, अंडरस्टँडिंग के थ्रू डायग्राम होता है, की हाँ ह्याच नर्व्स आहेत, मला माहिती होतं या नर्वला काय नाव द्यायचं आहे, हेही मला माहिती थेरॉटिकली, आणि मग मी डायग्रामची प्रॅक्टिस पण केली असं। हाँ, बट ये डायग्राम कंपलसरी है वहाँ पे ड्रॉ करना। आपने रूफ का हेडिंग दिया, रूफ की डायग्राम आती है, फ्लोर का हेडिंग दिया, फ्लोर की डायग्राम आती है। अब चलते फ्लोर की तरफ। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रीवर्टिबल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल टिश्यू covering semispinalis capitis, splenius capitis, levator scapulae, scalenius posterior, scalenius medius, scalenius anterior, ऐसा है। इसको छोड़ दो, सेरेटस एंटीरियर लिखने की जरूरत नहीं, सिक्स मसल है। तो 2 मिनट में हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसा इजी है। ऊपर से नीचे हम लोग वहां पे उसमें आ रहे हैं ट्रायंगल में। तो अगर ट्रायंगल के अपेक्स की तरफ आप हाथ लगाओ ऊपर, वहां पे टक 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 करके देखो आप, तो स्कल का पार्ट है। हाँ, और उसको ना कैपिटिस बोलते हैं, कैपिटल मींस हेड, ऐसा आता है। तो मुझे अब वो भले ही छोटा सा अपेक्स हो, तो वहां छोटा ही पार्ट आएगा मसल का, लेकिन वहां पे डीप अंदर में डिसेक्शन करूंगा, तो जो मसल लगेगी वो कहीं ना कहीं वो हेड से रिलेटेड है, मतलब कैपिटल से रिलेटेड रिलेटेड है, मतलब कैपिटिस है। तो इसके लिए पहले नाम में ही मुझे लिखना है कैपिटिस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। उसके नीचे दूसरी छोटी मसल स्प्लेनियस कैपिटिस, तो कैपिटिस कैपिटिस, और फिर लिवेटरस कैपिटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्टेब्रा से जिसका ओरिजिन है ऐसी वो, और वहां से ओरिजिन लेके, मतलब पीछे मेरा वर्टेब्रा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ, उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है।
वहां से मसल निकल रही है और नीचे की तरफ आ रही है स्कैपुला की तरफ। तो आते आते वो ट्रायंगल में से आती है। मैंने ऐसा याद रखा कि सबसे टॉप में सबसे ऊपर मुझे ना उस कल से रिलेटेड नाम लिखने दो। ध्यान दो हाँ। उसके नीचे है ना वर्टिब्रेज होते हैं, C1 C2 C3 C4 ऐसे होते हैं। ओके। तो उनसे आने वाली पहली मसल कौन सी होती है? तो तब फिर मुझे नाम याद आता है लिवेटर स्कैपुली, स्कैपुले को ऊपर उठाने वाली ऐसे को। तो मैं स्टेप बाय स्टेप याद रखता हूँ ऐसे, उन नामों को रट्टा नहीं मारूंगा मैं। अब C4 C5 C6 C7 इनसे ओरिजिन लेने वाले 3 स्कैलेनाई मसल्स, जिसका इंसर्शन नीचे है यहाँ पे फर्स्ट रिब के ऊपर और सेकंड रिब के ऊपर। तो 3 स्कैलेनाई मसल है, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने याद रखा। पहले 1 2 3 तो हो गया ऊपर हाइट के हिसाब से, लेकिन 3 स्कैलेनाई मसल है। एक ये भी लॉजिक है और ये भी लॉजिक है। अगर मैं ट्रायंगल के अंदर हूँ, ये अंदर की बात हम लोग देखें तो 1 2 और 3। तो 3 हॉरिजॉन्टल मसल ड्रॉ करनी है और फिर 1 2 और 3। और फिर ये मसल ये थोड़ी सी नीचे करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लिक माना जाता है, यहाँ पे सेकंड क्लिक माना जाता है, सिंपलीफाई करके। लेकिन मैंने इसको ऐसा याद रखा कि मुझे 6 मसल्स याद रखने हैं और सिंपल डायग्राम में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और 3 वर्टिकल लाइन अपने आप आ जाती है। और इनके नाम के हिसाब से अपने आप यहाँ पे ये स्केलनेस एंटीरियर, स्केलनेस मीडियस, स्केलनेस पोस्टीरियर ऐसे 3 स्केलेनाई मसल वर्टिकली वहां पे आ जाएगी। यहाँ पे पॉज देता हूँ 30 सेकंड का। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, उसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ। पहले उसका डायग्राम देख लो, फिर स्क्रीन बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा सा। उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट किया, मैंने सिंप्लीफाई किया उसको। ये ऊपर से लाइन आती है, पहला स्केलनेस, सेमीस्पाइनल स्कैपिटिस, स्प्लेनियस कैपिटिस, लेवेटरस कैपुली। तो ये मेरे 3 हो गए ऊपर के। और नीचे ये सब हटा दो, इसको सबको हटाना है, सिर्फ मसल दिखाना है यहाँ पे। और ये मेरी फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है नीचे की। तो एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो स्कैनलेस एंटीरियर, दूसरी लाइन स्कैनलेस मीडियस, तीसरी लाइन स्कैनलेस पोस्टीरियर। उसको सेकंड रिब तक हम भी लेके चलेंगे। अभी बड़ा करके मैं स्क्रीन के ऊपर देख पाएगा। फिर 30 सेकंड में मुझे बताओ क्या डिफिकल्टी है। मतलब ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको उस हेडिंग को यहाँ से इजी करके लेके जाना है। वेयर टू यूज द टीचिंग, वेयर टू यूज द कोचिंग, वो भी हमको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। और फिर से देखते रहना चाहिए। हाँ एंटीरियर मुझे याद है, पोस्टीरियर, इंफीरियर, बेस, अपेक्स, फिर सर ने समझाया। लेकिन अभी भी यहाँ पे डिफिकल्टी है सर। तो ये स्टेज वो होती है। ठीक, पूछो आप। प्रेरणा समझा क्या आपको? ये हम डीप का दिखा रहे हैं, बोला अंदर का मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये ऊपर ऊपर से आप स्किन को खींचेंगे तो ये बहुत सुपरफिशियल है, ये रूफ है। और आप जब अंदर जाएंगे बहुत डीप, देखो वर्टिबल कॉलम तक जाना पड़ेगा आपको, इसमें से हर मसल वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड है, अंदर से बाहर आ रही है। तो उसका भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। और अगर हम थोड़ा डीप डिसेक्शन करते हैं ना, तो कैसा दिखेगा।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, एक मिनट। ये देखो, फर्स्ट रीप सेकेंड रीप, यहाँ से क्लेविकल को निकाल दिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक्चुअली ट्रायंगल हमारा क्लेविकल तक ही है, लेकिन आप डीप डिसेक्शन कर रहे हो ना, अंदर है ना, तो मसल तो थोड़ा क्लेविकल के एक नंबर नीचे जा रही है ना, क्लेविकल फर्स्ट रिप तक जा रही है, तो क्लेविकल के नीचे फर्स्ट रिप है और फर्स्ट रिप के नीचे सेकंड रिप है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बोलते हैं ठीक है तुम क्लेविकल तक इमेजिन करो, लेकिन हम मसल को तो पूरा ही दिखाएंगे ना। ये एक चीज है। अब इसको देख लो। यहाँ पे वर्टिकल कॉलम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 एटलास और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सिस CC2, वो मैंने दिखाया। इमेजिन करो कि उस आदमी का पूरा आप डीप चले गए ट्रांसवर्स प्रोसेस तक, वर्टिकल कॉलम तक चले गए, मतलब डीप चले गए बहुत। और इसके लिए वहां से मसल आ रही है लेवेट्रस कैपुल, ये नाम दिखा है ऊपर से। C1 C2 C3 C4 से भी आती है, वो पार्ट छुप गया पीछे। और उसके नीचे स्कैलेनस, स्कैलेनस मीडियस, स्कैलेनस पोस्टीरियर, इधर से बताया स्कैलेनस एंटीरियर, C3 C4 C5 C6 और C3 C4 C5 C6 C7। दिस इज योर स्कैलेनस मीडियस।